بزرگان دین، آج کے عناوین میں دو اہم ٹاپک آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ پہلا، SIR شریعت کی نظر میں کیا اپنا تشخص، اپنی آئیڈینٹیفیکیشنز یا پھر اپنا آئیڈینٹی کارڈ یا پھر اپنی شہریت ثابت کرنا، اسلام کے اندر بھی اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے، یا پھر اس کے کرنے نہیں کرنے میں دونوں طرح کی برابری کی بات اسلام نے کی ہے؟ ایک بات کو ہم بہتر جاننا چاہیے، جس شریعت میں اور آپ آنکھ کھولے ہیں وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت محمدیہ یا پھر اسلامک لا یا پھر محمدی لا، جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، یہ بات کان کھول کر اور دل کی دریچوں کے پردوں کو ہٹا کر سمجھنا اور سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک سارے مسائل کو حل کر رکھا ہے۔ پڑھنے اور دیکھنے کی کمی ہے، ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ اس لیے موقع سے یا پھر اپنے زمانے کے حالات کے بدلنے کے اعتبار سے انسان اپنی کنٹری کے اندر رہتے ہوئے بعض دفعہ اس بات کا خیال آتا ہے کہ ملک کے اندر کے حالات دوسروں کے گھس پیٹ ہونے کی وجہ سے یا دوسرے ممالک کے لوگ بارڈر پار کر کے آنے کی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ ہاں، حکومت کو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ہماری پاپولیشن رہے، جو اس ملک کے باشندے ہیں، جو اس ملک میں آنکھ کھولے ہیں، یہ ہر کنٹری کے اندر کا رولز ہیں۔ وہاں پر کوئی دوسری کنٹری کا بندہ آ گیا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آ جانے کے بعد یہاں اپنے غیر قانونی یا پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو ایسے حالات کے اندر کچھ نہ کچھ ہندوستان کی حکومت ہو یا پھر اس کے علاوہ کی حکومتیں ہو، وہ ایک چیز کو ہمارے اوپر آفیشیلی نافذ کر دیتی ہے کہ کس طرح دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کا ہمارے پیارے ملک یا پھر ہماری کنٹری سے ان کا خارج کرنا لازم آئے یا پھر ان کا اخراج کر دینا ضروری سمجھا جائے۔ اب یہ چیز جو اب ہمارے ملک کے اندر فی الحال جو چل رہی ہے، اس سے پہلے جو چیزیں چلی تھی یا پھر اس سے پہلے جو چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر آ رہی تھی یا پھر ہمارے کانوں نے اس کو سنا تھا، مگر آج وہ چیز دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا NRC کے عنوان پر، CAA کے عنوان پر کتنے ہنگامے اور چرچے ہوئے۔ ہاں، اتنا یاد رکھنا ضروری ہوگا کہ جب شریعت نے اس چیز کو بتایا ہے کہ تم اپنے مال کی، جان کی، تشخص کی، اولاد کی حفاظت کرنے کے خاطر جو کچھ بھی تم کرتے ہو تو تمہارا نام شہید میں لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک وہ شہید ہے جو ہاتھ تلوار اٹھائے راستے میں نکل کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ اپنی جی جان لگاتا ہے، وہ تو پراپر شہید ہے۔ مگر ایک یہ بھی شہید ہے اگر کسی نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنی نسل فصل کو بچانے کے لیے
بھی اگر کوئی کچھ کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یہ بھی ایک طرح کے اللہ کے یہاں بڑی عبادت میں شامل ہوتی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز، اس چیز کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جا کر ڈھونڈتے ہیں، کیا ہوا تھا وہاں سمجھیں گے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی SIR آیا تھا، کہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی NRC جیسی کوئی چیز آئی تھی، یا پھر اس جیسا کوئی مرحلہ ہم کو ملتا ہے، ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفیشیل جو قبیلے کے تھے اس کو قریش کہا جاتا تھا، یا پھر بنو ہاشم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم اور خاندانی ان کا لقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک بنو ہاشم کی پناہ میں تھے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے بندے کے پناہ میں ہوتا ہے، یا پھر ایک مسلمہ کمیونٹی ایک دوسری کمیونٹی سے اٹیچمنٹ اختیار کر لیتی ہے، یا پھر اس کے تحت میں رہ کر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو ہم نے اپنا سرپرست مانا ہے، جو کچھ بھی ہوگا ان کی طرف سے ہمارے پاس اعلانات نکلیں گے اور ہم اپنی زندگی کے اندر ان کے بتائے ہوئے طریقے کو کور کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ رسول اللہ کی زندگی میں بنو ہاشم کے اندر رسول اللہ نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے سردار تھے انہی کے چچا ابو طالب، وہ بڑے نرم مزاج تھے، رسول اللہ کی بڑی محبت ان کے دل میں تھی، فلان تھی، یہ اپنے اعتبارات سے بہتر تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو بنو ہاشم کی جو کمان سنبھالی ہے اسلام دشمن ابو لہب نے سنبھالی ہے۔ ابو لہب نے جب بھی اپنے بنو ہاشم کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اسی وقت رسول اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مکہ کے اندر رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، چونکہ ابو لہب اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا، اس کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو رسول اللہ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے یہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف چلنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ نے مدینہ کی طرف اپنے آپ کو ڈالا اور مدینہ کی طرف اپنے آپ کی ساری ٹولی کو لے کر نکل گئے۔ وہ تو بڑا خیر کا کام ہوا کہ مدینہ کے اندر بسنے والے باشندوں نے، جن کو میں اور آپ انصار کے نام سے جانتے ہیں، انصار کا مطلب ہوتا ہے خوب مدد کرنے والے، رسول اللہ کو جب انہوں نے دیکھا تو اپنے پلکیں بچھا دی اور کہا یا رسول اللہ طلع البدر علینا، آج ہمارے پاس آسمان کا چاند طلوع ہو گیا، ہم ان کی مہمان نوازی کے لیے اپنے سارے دربار کو کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی شان میں جتنی ان لوگوں نے استقبال کے کام ہو سکتے تھے وہ سب کر دیے۔ ایون آپ یوں سمجھ لیں رسول اللہ کا انہوں نے کیسا ویلکم کیا تھا، خود نبی کے ساتھ آنے والے پیارے صحابہ کو انہوں نے، یعنی مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ نے کہا تھا ہمارے پاس دو باغ ہیں، ایک کھجور کا ہے ایک اور دوسرے کھجور کا ہے، آپ اس کھجور کے باغ کو ہماری طرف سے ہدیے میں رکھیں، آپ اس کے اندر کھیتی باڑی کر کر یہاں مدینے کے اندر اپنی پراپرٹی کو بناتے رہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں صحابہ کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا تو رسول اللہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تھا انصار صحابہ نے۔ یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو ہاشم کی کمان ابو لہب کے ہاتھ میں دیکھی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمان کو لے کر سیدھا سیدھا مدینہ کی طرف نکل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پناہ میں تھے وہ جغینہ کے کمان میں اور ان کی ماتحتی میں یا پھر ان کی پناہ میں تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مصالحت کرتے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھا کر کہتے کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ ملنا ہے ایک کام ضرور کرنا ہے، آپ ہماری حفاظت کریں ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ کو اسلام کے اندر ملتی ہیں اور آپ اس کو دیکھتے جائیں کتنی ایسی جگہیں ہیں۔ بعض دفعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر بھی بڑا دھوکہ ہوا تھا
کہ तुम हमारे साथ, आप हमारे साथ जब हाथ बटाने के लिए तैयार हुए थे तो वही एक कबीले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी परेशानी में मुब्तला कर कर उनकी अंदरूनी बातों को निकाल कर कुफ्फार मक्का को दिया था, और इसके साथ उन लोगों ने बड़े हठ धर्मी वाले मामले किए थे। रसूलुल्लाह ने उनके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। बुजुर्गान दीन, अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही अपना भाईचारा बढ़ाने के लिए ताइफ का भी सफर किया। आपको मालूम है रसूलुल्लाह जब ताइफ का सफर किया, जैसा मदीना का सफर किया था, ताइफ का भी सफर किया वहां की पनाह में आने के लिए। तो वहां के लोगों की बदकिस्मती ये थी कि रसूलुल्लाह को मदीना वालों की तरह वेलकम नहीं मिला। मदीना वालों ने जिस तरह रसूलुल्लाह का वेलकम किया उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि नहीं किया तो कोई बात नहीं थी, बल्कि खूब अल्लाह के रसूल को तकलीफें देकर वहां से निकाल दिया। मगर याद रखे अजीज दोस्तों, निकाल दिए का मतलब ये नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह वहां से निकल गए। अल्लाह के रसूल जब ये मरहले से गुजरे तो फौरन एक फरिश्ते ने कहा, रसूलुल्लाह आप हुक्म फरमा दे, इन दो पहाड़ों के दरमियान जो ताइफ बसा हुआ है इसको मिलाकर हम चिकना चूर कर देंगे। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई उनकी बर्बादी के लिए, बल्कि कहा यह मेरी कमजोरी है कि मैंने उनको सही मानों में दावत नहीं दे सका, रसूलुल्लाह होने का उनको यकीन नहीं दिला सका, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं इनके लिए यह बद्दुआ नहीं करता हूं। या रसूलुल्लाह आपके लिए फिर हम कह रहे हैं, आप एक मर्तबा इशारा कर दें, हम इनको मिलाकर खत्म कर देंगे। फिर भी रसूलुल्लाह ने कहा, अरे अल्लाह जी आप इन फरिश्तों को अपने पास बुला लीजिए, मगर मैं अपनी उम्मत को जानता हूं, आज ये ईमान नहीं ला रहे हैं तो क्या हुआ, आगे चलकर इनकी नस्लों में कोई ईमान लाएगा। आपने देखा होगा ताइफ जैसा इलाका, पथरीली इलाका, वहां पर कुछ दिन गुजारने वाले लोगों ने यहां तक कहा कि वहां का मौसम देखने के लायक रहता है। अगर रसूलुल्लाह उसी दिन बद्दुआ दे देते, हालांकि बद्दुआ देने का मकाम था, आज वो मंजर देखने को मिलता। आज वहां कितने बड़े बड़े कबीले, कितने बड़े बड़े मुसलमान, कितने बड़े बड़े इस्लाम के सिपाही जिंदा हैं, आप जाकर उनका मुशाहिदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने अपने आप को वहां संभाला था, अपने आप को वहां पर। हमको यह सबक मिलता है, SIR हो के ये, इसके अलावा जितनी चीजें हो हमारे पास, तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ये महफूज करना, सारी लवाजिमात जो हुकूमत की तरफ से बताई जा रही है, वो लवाजिमात या फिर वो पेपर्स या फिर वो आपके दस्तावेजात जो आपको ये समझ में आ रहे हैं कि ये हमारा प्रूफ देना ये बहुत जरूरी है, तो वह आपके लिए फरीजा है मेरे भाइयों। उसको आप फिल करें, जहां तक हो सके उसको अपने एतबारात से मुकम्मल करके अपने मसले को हल कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या किया था, जब अगर ऐसे मरहले आए जिस मरहले के अंदर आपका जीना अगर दुश्वार हो जाए, तो उस वक्त में एक बड़ी मुसलमानों की तादाद के ऐलान का इंतजार करें। अब बहुत सारे लोगों का जहन क्या बना हुआ है, हम नहीं देते वो SIR के उन्वान से फॉर्म फिल करना, हम इसी मुल्क के है थे रहेंगे। ये आपका ये जुमला हकीकत में अच्छा जुमला है, मगर फिलहाल के लिए ये जुमला वैलिड नहीं है। हकीकत में ये जुमला आपका, अब ये जुमला कहने से आपकी इस मुल्क की रेसिडेंसी साबित नहीं होती है, आपके इस मुल्क की रहने की क्या कहते हैं उसको, आपके मुल्क का होना, बाशिंदा होना नहीं साबित कर सकते हैं। इसीलिए जितना हमको बताया जा रहा है, जो चीज करने की है वो चीज को हम कर कर अपने आप के माल की, इसलिए कि अगर आपके मुल्क की शहरियत साबित अगर ना हो सकी, अल्लाह ना करे, तो उस वक्त में हमारी जान की, माल की, औलाद की, नस्ल फसल की सब बर्बादी हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने अपने माल की, औलाद की, नस्ल फसल की हिफाजत की, वो भी अल्लाह के यहां बहुत बड़ा फरीजा अदा करने वाला है, और इस चीज को करते करते इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह के यहां इस बंदे का दर्जा शहीदों में लिखा जाता है। कितनी बड़ी बात है। बुखारी शरीफ की एक मैं हदीस का आपके सामने खुलासा जिक्र किया, इसलिए हमको चाहिए जो चीज अभी फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर आपको ये बताई जा रही है, उसमें मेरे और आपका सबसे बड़ा फरीजा ये है कि इसमें हम पेश आगे रहें। जैसा आपने देखा था
एनआरसी के उन्वान पर, उसमें A to Z इस बात का सबूत हम सबको या फिर हमारे बड़े हजरात को या फिर हमारे वो पॉलिटिशियंस जो हमारे मुसलमान लीडर माने जाते हैं और हमारे लिए आवाज उठाते हैं, वैसे लोगों ने कहा था कि ये वाला बिल मुसलमानों के लिए बहुत अंतकनाक गलत साबित हो रहा है। तो पूरी दुनिया ने मिलकर, बल्कि हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे में उसका एक बहुत बड़ा लोगों का एक मंजर रास्ते में निकला और रास्तों में निकलकर क्या किया, प्रचार किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो अल्लाह का करना भी ऐसा हुआ कि हुकूमत ने भी इस सिलसिले में अपने कदम को पीछे हटा लिया। मगर अब फिलहाल अब हिंदुस्तान के उलमा हो, मुफ्तियान किराम हो या फिर हमारे मुल्क के बड़े लीडर्स हों या फिर हुकूमत के अंदर चलने वाले लोग हों जो ज्यादा समझ बूझ रखते हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान है कि हमको ये फॉर्म फिल करना है। तो आपको फिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने एतबार से आराम से जिएंगे करेंगे। इस चीज को सबसे पहले अगर कोई चीज कोट करती है अपने माल की, जान की, औलाद की, नस्ल फसल की हिफाजत, जैसा मैंने अभी आपको खुतबे के बाद जो कहा था, ऐसे बंदे भी अपने जान माल की हिफाजत करते हुए अगर शहीद हो जाते हैं या इस काम में लग जाते हैं, अल्लाह ऐसे बंदों को भी शहादत का दर्जा देता है। ये चीज को करने के लिए क्या था, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। जैसा कि आज हमारे जहनों में एक चीज है कि हमारा वोट बड़ा ही सस्ता बन गया है। अब मुसलमानों का वोट, मुसलमान ही नहीं बल्कि जहां जहां पर भी जमहूरियत जो वोट से चलती है, आप जाकर देखें कितने ऐसे मुसलमान होंगे, चाहे वो हमारे इलाकाई एतबारात से ले लो या फिर हमारे इस बॉर्डर से हटकर किसी और स्टेट्स में जाकर देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे लेकर लोगों को वोट डालना अपने लिए जरूरी समझा। और जब वो लोग पैसे लेकर वोट डालते हैं तो दो बातों का ख्याल हमारे जहनों में ही नहीं है। पहला ख्याल, हमने क्या किया, पैसा तो ले लिया, पैसा लेकर हमने उसको वोट नहीं डाला जिसको हमने डालना था, एक गलती। दूसरी गलती, एक तो हमने गवाही देने पर पैसे लिया, जो सूरे बकरा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास कोई गवाही मौजूद ना हो और तुम किसी गवाही को गवाही देने के लिए बुलाओ, अगर वो तुमसे कुछ रिश्वत मांगे या पैसा मांगे तो समझ लेना अल्लाह की उसके ऊपर बहुत बड़ी फटकार है। और हमने क्या किया, हम ये गवाही तो दे रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं का मतलब क्या है, गवाही दे रहे हैं कि ये हमारे लिए बेहतर होगा, ये हमारे लिए मुनासिब होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमारे पास 1000 लोगों ने वोट डालने का इरादा किया है, पूरे वन साइड होकर अगर हमने वोट डाला, 900 लोगों ने सही जगह वोट डाला और इसी तरीके से 1200 लोगों ने अगर गलत डाला, तो ये 900 का कोई वजन होगा, इन 900 का कोई वेट होगा, इन 900 का कोई भरम होगा? क्यों? इन लोगों ने हक समझकर एक सही बंदे को चुना था, मगर उन 1200 की तादाद जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर कर सामने वालों को ऊंचा दिखाने के खातिर पैसों के जरिए से, रिश्वतखोरी के जरिए से अपना एक लीडर चुन लिया। याद रखना, उनके उस जमाने से लेकर आखिर जमाने तक जब भी वो मुल्क के अंदर हो या फिर स्टेट के अंदर हो, अपने पद पर जब तक बाकी रहेंगे और जब तक जुल्म सितम होता रहेगा, वो 1200 लोग भी कल क़यामत में अल्लाह के सामने उसी बंदे की तरह मुजरिम होंगे जो वो सेम बंदा जो लीडर बनकर जालिम शुमार हो रहा है। इसीलिए हमारा वोट, हमारी शरीयत बहुत प्यारी है। हमको चाहिए कि हमारे वोट, ये बच्चों को खामोश बिठाएं, हमारे बच्चे या फिर हमारी आल औलाद की ये हिफाजत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी से इसको समझने की कोशिश करें, वरना तो हमारे लिए एक गलत चीज क्या होती है पता है, हम सारे काम कर कर चले जाएंगे, प्रॉपर्टी बनाकर चले जाएंगे, सब सारी चीजें हो जाएंगी, मगर याद रखें आपकी औलाद के लिए फ्यूचर के अंदर ये प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपकी औलाद के लिए हो, ये क्या गारंटी है? क्या अब ऐसी सिचुएशन में आप
और आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी नस्ल हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुई है, वैसी नस्ल को साबित करने के लिए भी ये लोग शक में आकर आपके पास प्रूफ मांग रहे हैं। तो ये बच्चे जो अब आपके हैं, इनके पास तो ये सारी चीजें आसानी से छीन लेंगे। इसीलिए हमारे पास अभी भी वक्त है, ये मामलात में हम आगे बढ़ें। अगर कोई बंदा किसी वजह से इस मामले को नहीं सुलझा पा रहा है, आप किसी मस्जिद के काउंटर पर जाएं और साथ ही साथ या फिर अपने महल्ले या फिर अपने बस्ती के लीडर या फिर वहां कोई बड़े मौजूद हो तो वहां फौरन जाकर अपने मसले को हल करें। ये चीज को इंतहाई अहमियत का हामिल बनाए, ये भी इस्लाम का सबसे बड़ा फरीजा है। बहुत सारे लोगों का यहां पर यह मानना है कि मौलाना बहुत दिनों से हम लोग SIR का फॉर्म फिल करने बैठे हैं, इक्का दुक्का बस दिन में 50-60 आ गए तो बहुत हो गए। क्यों भाई, क्या हो रहा है? क्यों हम इतनी अभी भी गफलती की जिंदगी जी रहे हैं? जो करने के काम है हमको वो करना चाहिए, ताकि हम अपने तशख्खुस को, हमारा फेस, हमारी जान, हमारे माल को हम महफूज कर सके। ये भी आपके लिए इंसानियत नहीं बल्कि शरई एतबार से फरीजा है। मैंने आज के उन्वान में 2 टॉपिकों का इंतखाब किया था। पहली टॉपिक तो यही थी, SIR में हिस्सा लेना क्या ये शरई एतबार से दुरुस्त है या नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा मुख्तसर सा वाक़या मैंने आपके सामने जिक्र किया। बनु हाशिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पनाह ली हुई थी। कब तक? उस वक़्त तक जब तक अपने चाचा अबू तालिब जिंदा थे। उसके बाद जब अबू लहब की कमान वो हाथ में आई तो उसके बाद रसूलुल्लाह ने यहां ये समझ लिया कि अब इस्लाम का यहां पर फल फूलना अभी फिलहाल के लिए दुश्वार होगा, अब मुझे यहां से निकलकर किसी और जगह पनाह लेना होगा। फिर इसी के साथ साथ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक जगह पनाह ली। और बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में जो मजलूम बनते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो घसीटे जाते हैं, जिनके घरों पे बिल्डोजर चलते हैं या फिर जिनके घरों के ऊपर आफतें आते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आज तक किसी की पनाह में अपनी पनाह नहीं दिए हुए होते हैं। आप जाकर देख लेना, हिंदुस्तान की अक्सरियत में आप अभी से देख लीजिए, जहां जहां मुसलमान परेशान हो रहे हैं, या तो उन लोगों ने वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की है जो एक जमाने में उन लोगों को करना था, या फिर उन लोगों ने वो काम नहीं किए हैं जो फिलहाल के जमाने में हमको करना था। ये 2 चीजें जिनकी छुटी हुई हैं, आज वो परेशान हाल है। अल्लाह का करोड़ नहीं अरब खरब दर्जे मैं और आप शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह ने हमको ऐसे इलाकों में हमारी जिंदगी गुजारने का हमारे लिए फैसला कुन इख्तियार दिया है, जहां पर हम ये सारी चीजें आसानी के साथ कर सकते हैं। और अल्लाह ने यह भी दिखाया कि दूसरे स्टेट्स वालों को देखो कि वो लोग कितने परेशान हैं। क्यों है? उन लोगों के वो एतबारात से परेशान है, कहीं आप भी वो गलती नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इस चीज को हम बेहतर तरीके से कर लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। दूसरा उन्वान जो सिर्फ 7 मिनट का है वो ये है, अब जो मौसम चल रहा है गर्मा का मौसम है। इस गर्मा के मौसम के अंदर मैंने तो फर्स्ट चीज जो बताई थी, बच्चों के इसके अंदर छुट्टियां मिलते हैं। बच्चों को बेहतर तरीके से समर क्लासेस में आप अपने उनको ज्वाइन कराएं, जहां पर मसाजिद या मदारिस के अंदर टाइम से ज्यादा अब क्लासेस चलते हैं। चूंकि ये समर का मामला होने की वजह से उस वक्त भी अपने बच्चों को वहां पर शरीक कराएं, ताकि आपके बच्चे ज्यादा टाइम इस बात में स्पेंड करें कि उनको इस्लामियात मालूम हो, उनको दीनियात मालूम हो, मुआशरत मालूम हो, अखलाकियात मालूम हो, मुआशरे में रहना किस तरह है वो मालूम हो जाए। दूसरी चीज इस समर के एतबार से क्या होती है, इस समर के मौसम में जो हमारा जो सिस्टम है निकाह शादी, जो हमारे मुआशरे का एक कल्चर बना हुआ है, हालांकि यह मौसम शादी का नहीं है। होते क्यों हैं? इसलिए होते हैं कि सबकी छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग कदम उठाते हैं इस महीने के अंदर निकाहों का सिलसिला चलाए। मगर याद रखो मेरे भाइयों, करोड़ों की लाखों की पूंजी जो आपने पसीना खून एक करके कमाया है, आप और आपकी औलाद, आपका पूरा घर उसके अंदर खपा कर एक एक पैसा जोड़ा है अल्लाह के लिए, वो करोड़ों का, वो लाखों का पैसा उन 400 लोगों को दिखा
दिखाने के लिए खर्च मत करो जो आपकी परेशानी में या फिर आपकी क्रिटिकल सिचुएशन में दरवाजे तक आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए आप कोई फॉर्मेलिटी अपने निकाह या वली में मत कीजिए जो लोग सिर्फ देखकर चंद मिनट की वाह-वाह करेंगे, फिर उसके बाद आपके लिए कोई असर बाकी नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के पीछे अपना करोड़ों का पैसा खर्च ना करें जो आपको शादी के बाद खुश नहीं देखना चाहते हैं। मैं सही कह रहा हूं आपको ये बात। ये जमाना कोई किसी को खुश देखना नहीं चाहता है। आपने उतनी महंगी अगर शादी की है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 लुकमे खाने तक आपकी तारीफ होगी, वहां से निकल के घर पहुंचने तक 28 मरतबा आपकी गीबत होगी, 85 मरतबा आपकी गीबतें होंगी, 100 मरतबा आपके ऊपर इल्जामात लगेंगे। ऐसे मुआशरे के ऊपर आप ऐसा खर्च कर कर अपना प्यारा पैसा, कीमती जोड़ा हुआ पैसा बर्बाद ना करें। अल्लाह की कसम खाकर उठें कि अगर आपके पास पैसा है, आप मकातिबों के मकातिब को चलाने वालों को दें। आप मदरसे या फिर स्कूल ऐसे जहां पर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर ऐसी जगहों पर अपना पैसा खर्च करें जहां पर मुसलमान बच्चों के पढ़ने की ताकत है मगर उनके ऊपर पैसे खर्च करने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से कई बच्चे हमारे पीछे हटे हुए हैं। ऐसे बच्चों को आप ढूंढो। क्या ऐसी शादी मुमकिन नहीं है हमारे मुआशरे के अंदर? अगर आज मैं किसी वक्त में शादी कर लिया तो उस वक्त में मैं 50 बच्चों की ये जिम्मेदारी लेता हूं कि इंशाअल्लाह इन 50 बच्चों की 2 साल की फीस मैं दूंगा। ये शादियां नहीं हो सकती हैं कि हमारे माशरे के अंदर? क्या शादी का वही मतलब है कि 10 गाड़ियां हम आगे, 5 गाड़ियां हम पीछे, नौशा की गाड़ी बीच में और मुकम्मल तरीके से ढोल ताशों के साथ निकले और अय्याशियों के साथ पैसा उड़ाते हुए निकल जाए और अल्लाह के ये आसमान की तरफ हम बम बारूद जैसी चीजों को हवा में उड़ाकर खत्म कर दें? क्या यही शादी करने का मकसद है? थोड़ा ठंडे दिल से सोचें। ठीक है, ये मुआशरा कर रहा है, उसी में मैं और आप बह गए तो मुआशरे के अंदर की बिगाड़ और हमारे बिगाड़ का क्या फर्क रह गया? क्या हम उनके दरमियान में कंपेयर कर सकते हैं? यही ना कि भाई उन्होंने वैसी शादी की, उससे बेहतर कर कर मैं बताऊंगा। थोड़ा पीछे आओ मेरे भाइयों। आप अगर शादी कर रहे हैं तो ये तय कर लो कि सबसे पहले मैं उन 2 गरीब बच्चियों की शादी का भी आज ही फैसला कर लेता हूं। आप यकीन करें, समझे, खाली मैं नॉर्मल हिसाब डालकर आपके सामने कह रहा हूं। अगर मैं अपनी शादी में 10 लाख खर्च कर रहा हूं, हालांकि 10 लाख खर्च करे बगैर भी आपकी शादी हो सकती है, 3 लाख 2 लाख बहुत हो गए, उन 5-6 लाख के अंदर जो बचे हुए हैं 2 गरीब बच्चियों की शादी का मसला हल नहीं हो सकता। आप ये तय करो, मेरी जब शादी हो रही है या मैं अपने घर के अंदर जिसकी शादी करने की जिम्मेदारी लिया हुआ हूं, इंशाअल्लाह पूरी शादी किसी गरीब लड़के की या लड़की की नहीं तो सही, मैं उसकी शादी के अंदर थोड़ा तो पैसा अपना खर्च करूंगा जो मैं अपनी शादी में बेजा फजूल उड़ाने वाला था वो उठाकर किसी गरीब लड़की को दे दूंगा। ये तय करो आप, ये तय करने का काम है। और यकीन करें, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये तकब्बुर वाली बात नहीं है। सीना ठोक कर लोगों के सामने बोले, जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मैंने 4 गरीब बच्चियों की भी शादी कराई थी। ये तकब्बुर नहीं होगा, ये बोलो आप, खुलकर बोले आप। हो सका तो आप अपने उस रुके के अंदर ये टाइप कराएं, मेरी शादी के साथ साथ मेरे मोहल्ले की 3 गरीब लड़कियों की भी शादी होने जा रही है और मैं ये पैसा उनके दरमियान में खर्च कर रहा हूं। ऐसा करके बताएं आप, ये करने के काम है। एक शादी अभी हाल फिलहाल के अंदर मैंने देखा, अल्लाह माफ कर, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 करोड़ रुपए खर्च हुए यार। मुझे अफसोस हो रहा है, ये उम्मत कहां जा रही है? 3 करोड़ शादी में नहीं खर्च होते, अल्लाह की कसम। 3 करोड़ शादी के लिए नहीं उठाया जा सकता, अल्लाह की कसम। 3 करोड़ शादी के लिए नहीं रखे जा सकते, अल्लाह की कसम। 3 करोड़ रुपए बर्बाद नहीं किए जाते एक दिन के वास्ते, अल्लाह की कसम। 3 करोड़ रुपए मुआशरे में लाओ, उन सही इस्तेमाल करने की जगहों पे स्पेंड करो। आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर की धज्जियां उड़ती जा रही है और अमीर ऐसा पैसा ला भी कहां से रहा है? इधर के सूद, उधर के लोन, उधर के इंटरेस्ट। अल्लाह रहम करे मेरे भाइयों, फिर ये शादियां 6 महीने नहीं चल रही है, टूट कर फिर हमारी ही उम्मास आती है, हमारे ही काउंटर आती है कि मैंने शादी की, मैंने शादी किया, ये मरहला हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे प्यारा निकाह वो है जिसके निकाह के अंदर बड़ी आसानी के साथ खर्च कम हो। अल्लाह माफ करे, इतना हमारा जहन गंदा हो चुका है, अगर कोई लड़का या लड़की
सस्ती अगर शादी कर ले, नॉर्मल अगर शादी कर कर निकल जाए, पूरा मुआशरा उसके ऊपर थोप देता है। ठीक है, आपको नहीं करना है, जो करना है कर ले। कोई अगर ऐसी शादी कर रहा है तो उसको ताने मत दो मेरे भाइयों, क्या होगा फुला होगा, शादी के लिए खर्च उतना ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कितना इससे बड़ी चीज आज से मैं आपको वक्त देता हूं, 1 महीने का टाइम देता हूं, एक मर्तबा मुझे आप इसका रेफरेंस लाकर बता दें, मैं आपके लिए जो इनाम तय करेंगे मैं यहां से देने के लिए रेडी हूं। एक जगह आप बता दें, अब्दुर्रहमान इब्न औफ या फिर कोई एक और सहाबी थे जिनका निकाह हुआ, रसूलुल्लाह ने उनके सीने पर, कुर्ते पर जाफरान का जब धब्बा देखा तो पूछा कि तुमने वलीमा कर लिया। अब बताओ मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबी और रसूल के दरमियान का जितना कनेक्टिंग आपस में था, उससे ज्यादा किसी का हो सकता था? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, जवाब दीजिए आप, हाँ या ना, मैं सुनना चाह रहा हूं, हाँ या ना बोले आप। हाँ, रसूलुल्लाह से ज्यादा उस जमाने में किसी से ताल्लुक हो सकता था किसी सहाबी का? अल्लाह के रसूल को नहीं बुलाया गया है। समझ रहे हैं यहां पे? यहां फलसफा समझिए आप। शादी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसको आज मुआशरा बड़ा कर, जिना 700 रुपये में। जाए आप इंस्टाग्राम जब आप स्क्रॉल कर रही, बीच में चंद चीजें आएंगी, एक लड़की ठहरी हुई होगी, अप्लाई नाउ, उसको क्लिक करें, वहां उसका रेट बताता है 300 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये। 1000 में निकाह होना था, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, मुआशरे को 1000 में जिना को कायम कर दिया। आज जाकर देखो, शादी से ज्यादा जिना के अड्डे गर्म हो चुके हैं। आज जाकर देखो, नौजवान बच्चे शादियों से ज्यादा कई खवातीन के साथ अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर कर रखें। ये मुआशरे की बदहाली हो सकती है। इसीलिए अटेंशन, अल्लाह के लिए मेरे भाइयों, अपना खून पसीने का पैसा उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जिन्होंने आपके लिए कोई खुशी का मरहला नहीं छोड़ा है। और हम क्या समझते हैं, निकाह एक जिम्मेदारी है। नहीं, निकाह जिम्मेदारी नहीं है, ये सोच खत्म करो। निकाह एक जिंदगी है। जिम्मेदारी किसको कहते हैं? 4 से 4 बजे तक की जॉब को कहते हैं, 9 से 9 की जॉब को जिम्मेदारी कहते हैं। हां, अगर आपने जिम्मेदारी को जिंदगी समझ लिया है, नूरुन अला नूर, मगर जिंदगी को जिम्मेदारी नहीं समझा जा सकता। जिम्मेदारी अलग चीज है और जिंदगी अलग चीज है। आपकी अपनी बीवी के साथ या फिर शादीशुदा जो जिंदगी होती है वो जिंदगी है, जिम्मेदारी नहीं है। यही मसला टूट रहा है। हमने क्या समझा है, बीवी को खाने के लिए दे दो, इतना पैसा दे दो, फुला दे दो, चुना दे दो, बस बात खत्म, मैं अपनी जिम्मेदारी से आजाद, अब मैं बाहर अपने गुलछर्रे उड़ाऊंगा। नहीं, जिंदगी है मेरे भाइयों। इसीलिए तो रसूलुल्लाह ने कहा था, कुफू देखा जाएगा। कुफू, कुफू का मतलब क्या होता है? लड़की है, उसको अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से जीना है। वो लड़की 20,000 अपनी जिंदगी में खर्च कर रही है, लड़का उसके लिए 5,000 की जॉब का लाकर दे रहे हैं। तो ये कुफू बराबर नहीं होने की वजह से भी मुआशरे के कई रिश्ते निकाह होने के बाद टूट रहे हैं। उनको सही खाना, उनको सही पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए कुफू में निकाह करें, बराबरी में निकाह करें। आपका लड़का जितना कमाता है उससे कम या फिर उसी के बराबर वाली लड़की से ऐसी हाई फाई हमने अपने लिए मुंतखब किया और सारे मसाइल मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों वो हो जाएंगे। हां, अगर आपकी मोहतरमा आपकी जवानी को और आपकी खुशहाली को, आपकी क्या कहते हैं खूबसूरती को देखकर सब फिदा कर दी, मुझे आपके साथ रहना है, ये अलग चीज है। ये मैंने आपको एक हदीस का खुलासा सुनाया। अजीज बुजुर्गान दीन, 2 अनावीन में पहला उन्वान भी अहम है। इस सैयार के उन्वान से जिन जिन लोगों ने अभी तक इस फॉर्म को फिल नहीं किया है, अल्लाह के लिए फिल कर दें और अपने मसले को हल कर दें। दूसरा मसला, शादी के लिए ज्यादा पैसे खर्च ना करें। हाँ, जरूर करें, थोड़ा खर्च जरूर करें, मगर इतना ज्यादा कि लोग तुम्हारी चंद मिनट के लिए तारीफ करें, फिर उसके बाद तुम्हारी हमारी जिंदगी में
कोसों दूर के फासले आ जाएंगे। इसीलिए अपने माल की हिफाजत ये भी सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम की जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाए, और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने के अंदर या फिर जितने हमारे शादीशुदा जोड़े हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह उन तमाम को नेक सालेह औलाद का जरिया बनाए, रहमतिका या अरहमर राहिमीन।